Now, this is last NCERT book word to word reading clip for the chapter biomolecule. So, the title is Nature of Enzyme Action. अब देखो इसमें क्या दिया है कि पहले जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट को अटैच होता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट होते हैं. एंजाइम इज रीयूज्ड फॉर नेक्स्ट substrate molecule. So each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that highly reactive enzyme substrate complex is produced. तो फर्ज करो कि रुबिस्को एंजाइम है और उसका जो सबस्ट्रेट है समझो वो CO2 है, तो Rubisco plus CO2. This is enzyme substrate complex. So each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule. म्हणजे एन्झाईम E ला सबस्ट्रेट S बाइंड होण्यासाठी एक ऍक्टिव्ह साइट असते, बाइंडिंग साइट असते. सो each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. This complex is short-lived, transitory, and dissociate into its product or products. The product or products P and unchanged enzyme with intermediate formation of enzyme product complex. So each enzyme has a substrate binding site in its molecule so that highly reactive enzyme substrate complex ES is formed. This complex is short-lived and then dissociate into its products P and unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex. तो आता यांनी हे स्टेटमेंट देताना थोडं डायरेक्ट दिलेलं आहे म्हणून कन्फ्युजन झालं. द फॉर्मेशन ऑफ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेन्शियल फॉर कॅटालिसिस. तो बघा आपण इथे पाहू. तो पहिले काय होतं की enzyme plus substrate combine to form enzyme substrate complex. Then before enzyme and product are separated, there is formation of enzyme product complex. So each enzyme, say E, has a substrate binding site, substrate S, so as to form a highly reactive ES enzyme substrate complex. This complex is short-lived and dissociate in its product P and enzyme unchanged enzyme E with intermediate formation of enzyme product complex. The formation of एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेन्शियल फॉर कॅटॅलिसिस. म्हणजे किती स्टेप्स येतील आता? तो सर पहिली स्टेप येईल एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दुसरी स्टेप येईल की एन्झाईम सबस्ट्रेट चेंज टू एन्झाईम प्रोडक्ट. देन तिसरी स्टेप येईल enzyme product dissociation into product and enzyme, and unchanged enzyme is ready to accept a new substrate.
So now we will go ahead. So enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that highly reactive enzyme substrate complex is formed. This complex is short-lived and dissociate in product and unchanged enzyme. Before that, there is formation of enzyme product complex. The formation of enzyme substrate complex is essential for catalysis. So E plus S gives ES, then gives EP, and then E plus P. The catalytic cycle of enzyme action can be described in following steps. मग हा जो साइकिल आहे कि वापस एक बार प्रोडक्ट एंजाइम सेपरेट होने के बाद वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट को लेता है उसको. सो स्टेप 1, फर्स्ट substrate bind to active site of enzyme. First, the substrate S bind to active site of enzyme E fitting into its active site. Binding of substrate include the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. सो जेव्हा सबस्ट्रेट एन्झाईमला चिपकतो तो एन्झाईमचा आकार बदलतो आणि एन्झाईम सगळीकडून सबस्ट्रेटला घेरून टाकतो. द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ एन्झाईम नाव इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट and break the chemical bonds of substrate and a new enzyme product complex is formed. तो अब वो जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है इट इज व्हेरी क्लोज टू द सबस्ट्रेट आणि सबस्ट्रेटचे केमिकल बॉन्ड तुटतात आणि आता एक नवीन पदार्थ बनतो एन्झाईम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. द एन्झाईम रिलीजेस प्रोडक्ट of a reaction and the free enzyme is ready to bind another molecule of substrate and run through catalytic cycle once again. अब इसको अगर हमें डायग्राम के रूप में निकालना है तो फर्ज करो कि दिस इज एंजाइम E and suppose these are substrate. तो first there is formation of enzyme substrate complex. Then this substrate enters very close in the enzyme and there is formation of the enzyme product complex. Then product is released and enzyme accept new substrate to continue the cycle like this. So first the substrate binds to active site of enzyme fitting into active site. Binding of the substrate induce enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. The active site of enzyme now is close in proximity to the substrate that breaks the chemical bond of substrate and new enzyme product complex is formed. The enzyme releases the product of the reaction and the free unchanged enzyme is ready to bind to another molecule of substrate and run through the catalytic cycle once again. Now factors affecting enzyme activity. तो कोई भी एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी निर्भर करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, सेकेंड इज पीएच, थर्ड इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोर्थ इज if there is any
इनहिबिटर। तो सर एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्टिविटी इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट and then beyond a limit the enzyme breaks down called denaturation. So a temperature must be optimum. Enzyme activity is highest at optimum temperature. Same is for pH. Then same is for substrate concentration. And inhibitor काय असतो? तो सपोज ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम और यहां है इनहिबिटर, तो वो इस सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा और एंजाइम को खुद चिपक जाएगा। तो आगे देखते हैं बुक में क्या दिया है। नाउ सी, factor affecting enzyme activity. So factors affecting enzyme activity. Activity of an enzyme can be affected by change in conditions which can alter tertiary structure of the protein. म्हणजे एखाद्या एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी कंडिशन्स चेंज करू शकतात का? कारण त्या कंडिशन त्या एन्झाईमचं टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज करतात. ॲक्टिव्हिटी ऑफ अ एन्झाईम कॅन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडिशन विच मीन्स कंडिशन्स कॅन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दिस इन्क्लूड 1 टेम्परेचर, 2 pH, 3 चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और चौथा बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी. सो एंजाइम एक्टिवेटर या एंजाइम इनहिबिटर. तो पहले बात करेंगे टेम्परेचर एंड पीएच. एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ना कम ना ज्यादा. Each enzyme show its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature, optimum pH. Activity decline both below and above the optimum value. Suppose the optimum value is 10. Example है. So activity at the optimal value 10 is maximum. अगर वो कम भी है वैल्यू तो एक्टिविटी कम, और ज़्यादा भी है तो एक्टिविटी कम. म्हणजे समजा एखाद्या एन्झाईमला ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 लागत असेल किंवा पीएच 10 लागत असेल, एक एग्जाम्पल देतोय मी, नॉट लिटरली उस पर मत जाओ. तो 10 से कम भी नहीं चलता और ज़्यादा भी कोई फायदे का नहीं है. So, enzyme functions in a narrow range of temperature pH. Each enzyme show its highest activity at particular temperature pH called optimum temperature and optimum pH. Activity decline both below and above the optimal value. Low temperature काय करते? Preserve the enzyme in temporary inactive state, and high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denaturated by the heat. अब इस चित्र को आप देखो. So this is a picture. So it is showing pH. तो on x-axis this is the pH. On an y-axis this is the activity. Suppose the highest activity is 10. Like this. अब देखो, suppose pH चाहिए 7. तो अगर 7 pH है तो activity is 10. That is maximum. 7 से थोड़ा भी कम रहा 6, 5,
4, 3, मतलब एसिडिक पीएच रहा तो देखो एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। और अगर वो 10 से ज्यादा भी हो गया, आई एम सॉरी, वो 7 से ज्यादा हो गया पीएच, इधर देखो 7 से ज्यादा 8, 9, 10, तो भी एक्टिविटी उसकी हो रही है डिक्लाइन। म्हणजे ऑप्टिमम जो आहे तो 7 पीएच ला आहे। 7 से कम एक्टिविटी कम, 7 से ज्यादा एक्टिविटी कम। नाउ फॉर टेम्परेचर, सपोज कोई एंजाइम है और यहां टेम्परेचर है, से इट इज 10 डिग्री, 20, 30, 35, 40, 45। तो फर्ज करो कि 40 डिग्री पे हाईएस्ट एक्टिविटी है, तो 35, 30, 20, ये 10, और अगर ये है 45, 50, 55, 60, तो सेम पिक्चर फॉर पीएच एंड टेम्परेचर है। नाउ सी पिक्चर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो देखो एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट and y-axis is velocity of the reaction. तो when substrate is maximum, the velocity is maximum. When substrate concentration is half, the velocity is half. The substrate concentration is minimum, the activity is minimum. पर सर हर एक चीज का एक ऑप्टिमम आता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। म्हणजे सपोज मैं उदाहरण दूं कि कोई स्टूडेंट को 3 चपाती काफी है, अगर उससे कम रही तो वो भूखा है, ज्यादा रही तो उसको फुलनेस या इंडाइजेशन होगा। सो ऑप्टिमम इज 3, लाइक दिस। Now let us proceed. So पहिलं पिक्चर काय आहे, एन्झाइम ऍक्टिव्हिटी पीएच रिलेशन, दूसरा एन्झाइम ऍक्टिव्हिटी टेम्परेचर रिलेशन, और तीसरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एन्झाइम एक्टिविटी है। तो यहां देखो, सो सबस्ट्रेट अगर कम है तो V मैक्स बाय हाफ, और यहां पे सबस्ट्रेट मॅक्झिमम है तो दिस इज V मॅक्स। तो सर त्याच्यापेक्षा जास्त सबस्ट्रेट वाढलं तर मग ऍक्टिव्हिटी का वाढली नाही? क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, एंजाइम मॉलिक्यूल कम पड़ेंगे। सो हमने टेम्परेचर और पीएच देखा। अब तीसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, with increase in substrate concentration, velocity of enzymatic reaction rises at first, सुरुवातीला वाढते। मतलब ये है एंजाइम्स और ये है सबस्ट्रेट्स। तो अगर सबस्ट्रेट्स बढ़ते गए तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, बट टू अ लिमिट। सो with an increase in substrate concentration, velocity of the enzymatic reaction rises first. The reaction ultimately reaches maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of substrate. तो Vmax पुढे वाढतच नाही, तुम्ही सबस्ट्रेट किती वाढवा। क्यों? This is because enzyme molecules are fewer and substrate molecules are in abundance. And after saturation of those molecules, there is no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecules. The activity of enzyme
अब ये चौथा फैक्टर आने वाला है। सो एक था टेम्परेचर, एक था पीएच, तीसरा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और चौथा है प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर और इनहिबिटर। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड्स टू एंजाइम। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो सेंसिटिव है किस बात को लेकर? फॉर प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल, ऐसे केमिकल के लिए विच बाइंड्स टू द एंजाइम। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अगर वो केमिकल एंजाइम को चिपक गया तो एंजाइम की एक्टिविटी शट डाउन होती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। तो सर ये चीज तो बड़े काम की है कि किसी एंजाइम की वजह से, उसके एक्शन की वजह से, उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई तकलीफ है तो क्यों ना हम इनहिबिटर्स कंज्यूम करें ताकि वो इनहिबिटर केमिकल विल बाइंड टू द एंजाइम एंड विल शट देयर एक्टिविटी। तो जैसे सूजन आती है तो अगर हिस्टामाइंस की वजह से आती है तो एंटी हिस्टामाइंस क्या होंगे? इनहिबिटर्स होंगे। सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। देखो, the activity of an enzyme is sensitive to the presence of specific or particular chemical which binds to the enzyme. When the binding of chemical shuts off the enzyme activity, the process is inhibition and the chemical is called inhibitor. अब जो examples दिए वो नीट में पूछे गए हैं। When inhibitor is closely resembling the substrate, तो जो इनहिबिटर है, जो एंजाइम को चिपकता है, वो अगर सबस्ट्रेट जैसा ही है तो इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो व्हेन द इनहिबिटर, दैट इज अ केमिकल, is closely has a resemblance with the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, inhibitor compete with substrate for substrate binding site of the enzyme. तो फर्ज करो कि ये कोई एक एंजाइम है और ये है उसकी बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट, और ये है ओरिजिनल सबस्ट्रेट और ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आई। तो अब इन दोनों के बीच में स्पर्धा होगी इसके साथ चिपकने की। आपको इसका उदाहरण मालूम है, रूबिस्को, राइब्यूलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज। So when the inhibitor has a close resemblance with the substrate, it is called competitive inhibitor. Due to its close similarity with the substrate, inhibitor compete with the substrate to form for substrate binding site of the enzyme. Consequently, परिणाम स्वरूप, the substrate now cannot bind. As a result, enzyme action declines. Example, अब यहां क्वेश्चन पूछा था, inhibition of succinic dehydrogenase, यह है एंजाइम। inhibition of enzyme succinic dehydrogenase by malonate which closely resemble with the substrate succinate in structure. तो आता बघा, succinic dehydrogenase
डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। अब ये किसका ऑक्सीडेशन करता? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो सर सक्सीनेट का करता रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये ऑक्सीडेशन करता है सक्सेनेट का। पर अगर वहां है मैलोनेट तो वो सक्सेनेट को छोड़ देगा, मैलोनेट को पकड़ेगा। सो example is inhibition of enzyme succinic dehydrogenase by malonate, and malonate is closely resembled with original substrate succinate in structure. Such competitive inhibitor are often used to control bacterial pathogens. आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो स्टैटिन्स है, द एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एंजाइम दैट बिल्ट अप कोलेस्टेरॉल, वहां पर है। तो आता आपण एकदा वाचू आणि मग फायनल टच। तो देखो, activity of an enzyme is also sensitive to presence of specific chemical which bind to enzyme. When the binding of chemical shut down the enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is inhibitor. When inhibitor closely resemble, that is similar with the original substrate in its molecular structure, and then it inhibits the activity of enzyme, such inhibitor is called competitive inhibitor. Due to close structural similarity with substrate, inhibitor compete with substrate for substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action decline. Example, inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate, which closely resemble the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitors are often used to control bacterial pathogen. Now, classification of enzymes. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. आज तक हजारों एंजाइम डिस्कवर हुए, आइसोलेट किए, उनका अध्ययन हुआ. Most of these enzymes have been classified in different group based on type of reaction they catalyze. Underline. तो उनको क्लासिफाई किस आधार पे किया कि कौन से प्रकार की रिएक्शन वो कैटालाइज करते. माने डिहाइड्रोजिनेशन करवाते या ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप करवाते या हाइड्रोलिसिस करवाते, लाइक दैट. So enzymes are divided in 6 classes. Each class has 4 to 13 subclasses. तो क्लास किती आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and every class has minimum 4, maximum 13 subclasses. So thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of the enzymes have been classified into different groups based on type of reaction they catalyze. The enzymes are divided in 6 classes and each class has 4 to 13 subclasses and named accordingly by 4-digit number. मतलब एंजाइम नोमेनक्लेचर में उनके पीछे 4 डिजिट लगते हैं. तो अब हमें देखना है वो 6 क्लासेस. अब ध्यान दो. So
नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। आप याद करो क्रेब्स साइकिल। जैसे फॉर्मेशन ऑफ से मैलिक एसिड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कैसे हुआ था? तो सर मैलिक एसिड का छीना गया हाइड्रोजन और वो दिया गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। तो मैलिक एसिड का हुआ डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का हुआ रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल, तो सपोज आइसोसाइट्रिक एसिड बिकेम ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। तो इसका हाइड्रोजन इसको दिया, तो जिसका हाइड्रोजन छीना उसका ऑक्सीडेशन, जिसको मिला उसका रिडक्शन। सो पहली कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन between two substrate S and S dash. For example, S reduced, आप इसे चाहे तो AH2 लिख सकते, मतलब उसके पास हाइड्रोजन है, प्लस S डैश ऑक्सीडाइज, मतलब A डैश, सो इट गिव्स S ऑक्सीडाइज माने A प्लस A डॅश H2, म्हणजे एकाचा हाइड्रोजन घेऊन दूसऱ्याला देने। तो जिसका हाइड्रोजन लिया उसका ऑक्सीडेशन और जिसको वो मिला उसका रिडक्शन। तो ऐसी बहुत सारी क्रेब्स साइकिल में वो 4 स्टेप है। आइसोसाइट्रिक एसिड टू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, केटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनिल कोए, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमारिक एसिड और मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में भी है। सो व्हेन 3'PGAL became 1,3-dipga। एसिटिलेशन में भी है, पायरुविक एसिड became acetyl CoA। नाउ सेकेंड इज ट्रांसफरेज। These enzyme catalyzing a transfer of a group G other than hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन की ट्रांसफर अगर हुआ तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है। सो ट्रांसफरेज एंजाइम कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप G सपोज बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड H डैश। तो देखो अब एस जी, तो ये जो ग्रुप है अब ये हो रहा है ट्रांसफर फ्रॉम एस टू एस डैश। सो इसीलिए आपको मिला एस प्लस एच डैश जी। सो ऑक्सिडो रिडक्टेज काय करते, एकाचं ऑक्सिडेशन दुसऱ्याचं रिडक्शन। यहां ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होता। ट्रांसफरेज क्या करता है सर, इट ट्रांसफर सर्टन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम एस टू एस डैश। अब तीसरा है हाइड्रोलेसिस म्हणजे एच। हाइड्रोलेसिस एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक सब्सटेंसेस, कार्बन कार्बन, कार्बन हलाइड और पीएन बॉन्ड्स। तो वो हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, तो हाइड्रोलेसिस। अब चौथा लाइजेस, L OTHL, OTHL, enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other
other than hydrolysis. So अगर रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय हाइड्रोलिसिस होता तो एंजाइम है हाइड्रोलिसिस, और अगर रिमूवल ऑफ ग्रुप होता है फ्रॉम अ सबस्ट्रेट बट बाय अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग द डबल बॉन्ड्स, इट इज कॉल्ड लाइसिस. अब देखो CX बॉन्ड CY, तो हमें मिला XY एंड C डबल बॉन्ड, तो OTHL ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस एंड लाइसिस. अब पांचवा आइसोमरेज. तो देखो एक बार वापस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस एंड लाइसिस, और अब आइसोमरेजेस. includes all enzyme catalyzing interconversion of optical isomer, geometric isomer, positional isomers. जसं फॉस्फोग्लुकोआयसोमरेज या फॉस्फोट्रायोआयसोमरेज या फॉस्फोग्लायसेरोम्युटेज, हे सगळे आयसोमरेजेस असतात. कॅटलायझिंग इंटरकन्व्हर्शन ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर, जिओमेट्रिक आयसोमर, पोजिशनल आयसोमर. एंड आखिरी में लाइगेजेस माने ज्वाइनिंग एंजाइम, जिनको आप जानते. सो OTHLIL. So enzyme catalyzing linking together two compound. For example, enzymes which catalyze joining of carbon oxygen, carbon sulfur, carbon nitrogen, phosphorus oxygen bonds. तो ये हो गए 6 प्रकार के क्लासेस. आणि सगळ्यात महत्वाचं कोफॅक्टर्स, याच्यावर क्वेश्चन येतो. हे सोपं आहे. कोफैक्टर्स मतलब वो एंजाइम से जुड़े रहते. सो 3 प्रकारचे कोफॅक्टर असतात. एक असतो प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज व्हेरी टाइटली अटॅच. प्रोस्थेटिक ग्रुप. दूसरा असतो कोएंजाइम. आणि तिसरा असतो मेटल आयन, जैसे Mg डायपॉझिटिव्ह, Zn डायपॉझिटिव्ह, लाइक दैट. तो सर हे तुम्ही काय लिहिलं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन. तो ये तीनों हैं कोफैक्टर एसोसिएटेड विथ एंजाइम. तो देखो जो मेन एंजाइम रहता है उसको बोलते एपो एंजाइम, और उसके साथ अगर तीनों में से कोई भी जुड़ गया तो वो बनता होलो एंजाइम. म्हणजे नुसतं पेन असेल तर त्याला म्हणायचं अपो एंजाइम, आणि त्याच्यावरती कॅप लावली तर म्हणजे कोफैक्टर असला तर मग होलो एंजाइम. अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया. Enzymes are composed of one or several polypeptide chain. ठीक है की एन्झाईम मध्ये एक प्रोटीन म्हणजे पॉलिपेप्टाइड चेन असेल किंवा सेव्हरल असतील. However, there are number of cases in which non-protein substance called cofactor
are attached to enzyme to make enzyme catalytically active. म्हणजे बेसिकली जो प्रोटीन पार्ट असतो तो असतो ॲक्च्युअल एन्झाईम, पण त्याच्यासोबत जो नॉन प्रोटीन सबस्टन्स असतो त्याला म्हणतात कोफॅक्टर. सो enzymes are composed of one or several polypeptide chain. However, there are number of enzyme in which non-protein constituent called cofactor are bound to the enzyme to make it enzymatically more active. In these instances, माने in example में the protein portion of enzyme is called apoenzyme. And three kind of cofactor may be identified: prosthetic group, coenzyme, metal ion. तो फिर अपोएंजाइम के साथ अगर इन तीनों में से कोई भी एक कोफैक्टर है तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं. ये नीट क्वेश्चन है. नाउ नंबर 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप, नंबर 2 कोएंजाइम एंड नंबर 3 मेटल आयन. अब यहां नीट क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना है. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स. म्हणजे हा जो कोफॅक्टर आहे तो ऑर्गॅनिक आहे. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गॅनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफॅक्टर. माने वो अलग है फ्रॉम कोएंजाइम, फ्रॉम मेटल आयन. कैसे? तो इट इज टाइटली अटैच विद द अपोएंजाइम. द प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू अपोएंजाइम. फॉर एग्जाम्पल, इन peroxidase and catalase, which catalyzes breakdown of hydrogen peroxide माने H2O2 into water and oxygen. So heme is a prosthetic group. आता पहा, एक एंजाइम peroxidase, दूसरं कैटालेज. ये दोनों का काम क्या है? सो दे ब्रेक द H2O2 into hydrogen, into water and oxygen. So this is water, H2O, and this is half O2. सो ये वाले जो एंजाइम है पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज, उनके साथ में जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज हीम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. तो हा हीम पार्ट आहे ना, हा या दोघांच्या ऍक्टिव्ह साइटचा पार्ट आहे ऍक्च्युअली. सो हमारा पहला जो है कोफैक्टर, that is prosthetic groups. They are organic compounds. They are distinguished from other cofactor in that they are tightly attached to apoenzyme. The example is heme is a prosthetic group attached to apoenzyme peroxidase and catalase, and they are the part of active site of the enzyme. Number 2 is coenzyme. Coenzymes are also organic compound. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. पर दोनों में फर्क क्या है? तो ये टाइटली अटैच है, ये लूजली अटैच है. सो कोएंजाइम्स आर आल्सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट देयर एसोसिएशन विथ अपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालिसिस ओनली. माने तब तक उसे अपोएंजाइम की याद नहीं आती, पर जब काम करना है तो वो आ जाता. Furthermore, coenzyme also serve as cofactor in number of different enzyme catalyze reaction. तो जो coenzyme नाम के cofactors रहते,
तो वो लॉक एंड की के जैसे स्पेसिफिक नहीं है। फिर द कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, नीट क्वेश्चन है, आर विटामिन। मतलब सर ये जो कोएंजाइम्स है तो उनका एक एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, विटामिन। एग्जाम्पल देखो, कोएंजाइम एन ए डी एंड NADP, ये फोटोसिंथेसिस में और ये रेस्पिरेशन में आया था। दे कंटेन विटामिन नाइसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू कोफैक्टर। एक होता प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता कोएंजाइम। दोनों ऑर्गेनिक है बट ये टाइटली बाउंड रहता और ये लूजली अटैच रहता, मतलब काम के वक्त आता। एंड इट पार्टिसिपेट इन नंबर ऑफ रिएक्शन। उनका एक एसेंशियल कंपोनेंट रहता विटामिन। फॉर एग्जांपल नाइसिन विटामिन, आई थिंक इट इज B7 और B6, जो भी होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ NAD एंड NADP। नाउ नंबर 3, मेटल आयन। सो पहिला कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप, दुसरं कोएंजाइम, तिसरं मेटल आयन. Number of enzyme require metal ion for their activity which form coordination bond with side chain at active site. So हे मेटल आयन काय करतात, त्या एन्झाईम सोबत कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनवतात with a side chain at a active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. तो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट और ये मेटल आयन है समझो, तो ये एंजाइम के साथ भी बॉन्ड बनाता और सबस्ट्रेट के साथ भी. So number of enzyme required metal ion for their activity. These metal ion form coordination bond with side chain at active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. Example आता हे नीट मध्ये विचारलं होतं, झिंक इज कोफॅक्टर for proteolytic enzyme carboxypeptidase. हा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है डाइजेशन चैप्टर मध्ये, तो उसके लिए कोफैक्टर कौन है, Zn डायपॉजिटिव. कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन एनी कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाई दैट, ये साबित करता है कि कोफैक्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. अब आप ये वीडियो देखने के बाद पूरा चैप्टर एक बार बुक में से पढ़ लीजिए. थैंक यू.